Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class. Today we are going to study about tenses. In this first part of the video, you will come across what is mean of the tenses. What are the tenses? What are the type of tenses and how they are used? Let us start this session now. The tense is the change of form in a verb to express the time of an action. There are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. Each of these principal tenses is again subdivided into four forms: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. You undoubtedly knew the definition of all the tenses forms, but you have to remember the use of all types of tenses. We will always attribute on the usage of grammar. When we are studying tenses, we already know indefinite means simple. That is simple present tense, simple past tense and simple future tense. Now let us move to the picture and we will study what are the types of tenses. See, first there is a present tense, that is the present moment. Okay, then the present tense travel when it travels in the past. Then the present moment will transform into present, and then present perfect, which will in turn converted into past and past perfect, and then ultimately the past times comes. Okay, uh, in a same manner, if in the present moment we will see in the future, it will become simple future tense and then perfect future tense, and then there will be a future time. So if we distinguish it into two forms, that is the simple form and continuous, that is ongoing or progressive form, what will be the answer to this? Let us start with this present moment. If, see, we are here in the present moment. When we say present in simple present tense or indefinite present tense, simple, and this is progressive or continuous. Okay, continuous. Okay, so the sentence will become, I take English classes every Monday, when it is a simple present tense. But when I am making it a continuous tense, that is continuous present tense, it would be I am studying. Okay, now let us convert this present tense into present perfect. Now what will be happen in the simple sentences? It will, I have already studied the tenses today. And if it is a continuing present tense, a present perfect tense, it would be, I have been learning English for 3 years. बच्चों अब मैं आपको इसको हिंदी में भी समझा देती हूँ. प्रेजेंट टेंस जो प्रेजेंट मोमेंट में होता है, जब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, तब उसके अंदर आई टेक इंग्लिश क्लासेस एवरी मंडे, ये स्टेटमेंट जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस शो कर रही है. जबकि आईएनजी लगना, आई एम स्टडिंग, ये हो रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूस टेंस हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म शो कर रहा है. अगर हमें प्रेजेंट को प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखेंगे? आई हैव ऑलरेडी स्टडीड द टेंसेस टुडे. लेकिन अगर मुझे इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है, तो क्या होगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश
फॉर 3 years. ओके, अब इसके बाद जब वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और सिंपल पास्ट टेंस बन जाएगा तो प्रेजेंट मोमेंट चेंज होके आई वेंट टू स्कूल हो गया। और अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं तो वो होएगा आई वॉज वॉशिंग द कार व्हेन इट रेन्ड। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं। नाउ अगर हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हो जाएगा आई हैड वॉश्ड द कार बिफोर इट रेन्ड। लेकिन अगर मुझे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है या प्रोग्रेसिव बनाना है तो होगा आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ ईयर व्हेन इट वाज क्लोज्ड। ओके, नाउ लेट अस कम टू द फ्यूचर। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को आगे कंटिन्यू करके फ्यूचर में देखते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है हमारा वो बनेगा आई विल गो टू द सिनेमा। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट को आगे फ्यूचर कंटिन्यूस में देखेंगे तो वो बनेगा आई विल बी फिनिशिंग दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ओके, अब हम फ्यूचर परफेक्ट बना रहे हैं तो बनेगा आई विल हैव लर्न ऑल दीज टेंसेस बाय टुमारो। लेकिन अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बना रहे हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस है या हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं इसे, प्रोग्रेसिव टेंस बनाएंगे तो वो बनेगा आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years दिस समर। ओके, दिस वॉज द टाइमलाइन। आपको मैंने ये समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। लेट अस लर्न इट इन इलैबोरेटेड फॉर्म। ओके, अब बच्चों देखो, हम इस टेबल से समझते हैं कि कैसे यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसके साथ टाइम लाइन के अंदर क्या होता है, देखो लेट मी एनलार्ज इट। बेटा देखो अब क्या हो रहा है आपके साथ, यहाँ पे देखिए आपका जो प्रेजेंट है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पे आपका जो है वो प्रेजेंट है। जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तब हम यहाँ इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि शी रियली गोज डाउन टू दो स्टेयर्स। ठीक है, हम इसमें रूटीन फैक्ट्स की बात करते हैं और हम इसमें जो टाइम क्लॉज यूज़ करते हैं वो ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, समटाइम्स, ओकेजनली, रियली, नेवर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। और डू या डज लगा के ही, शी, इट के साथ लगाते हैं, मतलब हमारा एस और ई एस लगता है। मैं इससे नेक्स्ट स्लाइड में आपको रूल्स भी बताऊंगी, बट लेट अस सी व्हाट इज़ द बार ग्राफ कि कैसे हम प्रेजेंट को और या प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारा होता है। अब देखो, जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑन गोइंग हमारा जो एक्शन है वो चलता रहेगा, जो अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। यानी कि जो ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट है इससे थोड़ा सा कदम पहले और थोड़ा सा कदम बाद ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू होगा प्रोसेस, तो इसलिए वो कहलाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी ऑनगोइंग प्रेजेंट एक्शन। जैसे दे आर गोइंग डाउन द स्टेयर्स राइट नाउ। ठीक है, वो अभी नीचे उतर रहे हैं, थोड़ी देर बाद भी वो नीचे उतर रहे हैं। ठीक है, तो राइट नाउ, एट दैट मोमेंट, ये जो है आपका टाइम क्लॉज हो गया। और बी के साथ हमने जब एम, आर, इज लगा के फिर इंग लगा दिया तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन। अब इसे समझो, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है बच्चों, ध्यान से देखो। जब हम लोगों का ये पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉट फिनिश, नॉट स्पेसिफिक और अननोन टाइम। हमारा जो काम है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और वो स्पेसिफिक टाइम भी नहीं पता कि हमें कब ख़त्म होगा। यानी कि हमारे पास जो टाइम क्लॉज है वो या तो फॉर लग रहा होगा, सिंस लग रहा होगा, एवर या नेवर लग रहा होगा,
येट स्टिल रिसेंटली, ऐसी चीज़ें ही लग रही होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि हैव या हैज़ के साथ परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है इसमें, जो कि है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके इसे अच्छे से समझ लेते हैं। हैव यू एवर फॉलन डाउन द स्टेयर्स? आई हैव नेवर फॉलन डाउन द स्टेयर्स। ये जो आपने देखा, ये दोनों चीज़ें, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है। ओके अगर हमें इसमें कंटिन्यूस मतलब ऑन गोइंग जो हमारा है जगह, उससे भी वो आगे चलता रहे, लगातार चलता रहे, तो ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनेगा, जिसमें हम ड्यूरेशन के अंदर एम्फसाइज करते हैं कि क्या ड्यूरेशन चल रहा है। जैसे कि वी हैव बीन गोइंग डाउन द स्टेयर्स फॉर एवर, ये स्टेयर्स तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है फॉर एवर चलती रहेंगी। उसके अंदर क्या होता है, हैव और हैज़ के साथ बीन और इंग लग जाता है। ओके नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द पास्ट टेंस। अब देखो बेटा, यहाँ पे फास्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या हुआ कि हम कहीं दूसरे पॉइंट पे थे और अभी तक वो जो एक्शन है वो फिनिश हो गया उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर। पास्ट में कहीं था, वो एक्शन वहीं पे ख़त्म हो गया। यानी कि अगर मैंने कल काम किया था वो वहीं पे ख़त्म हो गया, अगर मैंने ईयर एगो किया था तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया। शी वेंट डाउन दो स्टेयर्स 2 minutes एगो, एगो कह दिया ना हमने, मतलब वो उतर चुकी है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होगा, इसमें डिड आ जाता है वर्ब के जगह पे, और जो रेगुलर वर्ब है उसके साथ ईडी लग जाता है, और जो इरेगुलर वर्ब है वो उसके साथ लिस्ट लग जाता है। ओके लेट अस कम टू दी पास्ट प्रोग्रेसिव। अब जब हम पास्ट प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो पास्ट में एक्शन हुआ था वो अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो अगर मैं स्टेयर्स है, अभी भी उतर रही है, वो उतर रही थी और अभी भी उतर रही है। ही वॉज गोइंग डाउन द स्टेयर्स व्हेन ही फेल। अब जब वो स्टेयर से उतर रहा था तब वो गिर गया। या फिर ही वॉज गोइंग डाउन द स्टेयर्स वाइल शी वॉज वॉचिंग। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें जो आपका है वॉज और वर्ड लग रहा है और उसके साथ इंग लग रहा है, और इसमें जो हमारा जो टाइम क्लॉज होता है उसमें व्हेन और वाइल आता है। ओके नाउ लेट अस कम टू दी परफेक्ट पास्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट। ओके या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं उसको। लेट अस सी, अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हमारे जो फिनिश एक्शंस होते हैं वो दो होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे एग्जांपल से समझो तो आपको समझ आएगा। आई हैड ऑलरेडी गॉन डाउन द स्टेयर्स व्हेन द एलिवेटर अराइव्ड, मतलब मैं वहाँ सीढ़ियाँ उतर चुका था जब एलिवेटर आया था। तो दो चीज़ें हो रही हैं, दो एक्शन हैं जो ख़त्म हो चुके, एलिवेटर का आना और आपके डाउन स्टेयर्स जाना। यानी कि इसके साथ हैड के साथ, आपके हैड के साथ जो लगता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल लगता है। ठीक है, अब है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ही हैज़ बीन गोइंग डाउन द स्टेयर्स व्हेन ही फॉल, जब वो अब इसमें हमें बताना है कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ था जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन कैसे कंटिन्यू हो रहा है कि ही हैज़ बीन गोइंग डाउन द स्टेयर्स, वो जा रहा था डाउन द स्टेयर्स, तभी वो गिर गया। ठीक है, तब वो गिरा। व्हेन वाला क्लॉज आ गया ना, देखो टाइम क्लॉज, तो इसमें क्या है, हैड के साथ बीन लग के इंग लगता है। ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ इसका मैंने एक टेबल भी दिया है जिससे आपको समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ पोजीशनिंग समझ रहे हैं कि जो चीज़ों की पोजीशनिंग होती है, जो एक्शन की पोजीशनिंग होती है, वो कहाँ डाउन द सरफेस होती है और कैसे वो आगे बढ़ती है और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और कौन से टाइम क्लॉजेस लगते हैं उसके साथ। ओके नाउ लेट अस कम टू द फ्यूचर। फ्यूचर वाले में क्या होता है, हम बताते हैं जो विलिंगनेस है या प्लान्स या प्रोडिक्शंस हम कर रहे हैं वो फ्यूचर की कर रहे हैं, तब हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। तब ये देखो जैसे एग्जांपल पे टुमारो, नेक्स्ट, इन, ये चीज़ें हम जो टाइम क्लॉज है वो यूज़ करते हैं। इसमें सिंपली हमारा विल लग जाता है और जो भी हमारा वर्ब है वो लग जाता है। ठीक है, आई विल हेल्प यू डाउन द स्टेयर्स इन अ फ्यू मिनट्स, मैं आपको हेल्प करूँगा कुछ समय बाद, कुछ मिनट के बाद
नीचे उतरने में, ठीक है। शी विल श्योरली फॉल डाउन द स्टेयर्स नेक्स्ट टाइम, वो ज़रूर गिर जाएगी नेक्स्ट टाइम जब वो स्टेयर्स उतर रही होगी। विल लिखा है ना, देखो सब पे विल लगा दिया, तो ये ही हमारे को देखना है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हमारा बन जाएगा। लेट अस कम टू द फ्यूचर प्रोग्रेसिव। जो ऑन गोइंग हमारा एक्शन होता है फ्यूचर में, वो चलता रहता है, मतलब जैसे अब ये फ्यूचर है, फ्यूचर्स में और भी वो चले जा रहे हैं, जैसे पास्ट का जो एक्शन था वो आगे कंटिन्यू हो रहा था, प्रेजेंट में भी जो आगे फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहता है। ये जो प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूस का मतलब है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विल भी आ जाएगा और उसके साथ इंग लग जाता है। जैसे देखो, ही विल बी गोइंग डाउन द स्टेयर्स व्हेन, ठीक है, ही इज गोइंग टू बी गोइंग डाउन द स्टेयर्स। ओके, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट हम फर्दर चलते हैं। फर्दर फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, इसमें भी दो एक्शंस इकट्ठे होते हैं फ्यूचर में। अब कैसे होते हैं देखो, ही विल हैव गॉन डाउन द स्टेयर्स बाय द टाइम द एलिवेटर अराइव्स। मतलब अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे, और हम यूज़ करें बी गोइंग टू हैव, और प्लस हम जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बताया कि जो शी विल बी गोइंग डाउन द स्टेयर्स, वो जाएगी नीचे जब तक कि एलिवेटर पहुंचेगा नीचे। मतलब दो एक्शंस ऐसे होने वाले हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं और दोनों ही एक साथ होने वाले हैं। तो यानी जब भी दो एक्शंस की बात आती है तब हम परफेक्ट की बात करते हैं। ये आपको समझ में आएगा, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में। ओके, there is an involvement of two actions in the perfect tense, चाहे वो परफेक्ट प्रेजेंट हो, चाहे परफेक्ट आपका पास्ट हो, या परफेक्ट फ्यूचर हो। लेट अस सी द परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, मतलब जो कंटिन्यू हो रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, we will have been going down these stairs for 2 months by the time the elevator is constructed। अब वो कहता है फिर से दो काम होंगे। दो काम कौन से हो रहे हैं, एक तो स्टेयर्स के नीचे जाना और दूसरा एलिवेटर्स का बनना, कंस्ट्रक्ट होना। दो काम हो रहे हैं, लेकिन दोनों काम फ्यूचर में भी हो रहे हैं। और परफेक्ट कैसे है, वो कंटिन्यूस कैसे हैं, मैंने आपको परफेक्ट का बता दिया, फ्यूचर में हो रहे हैं ये बता दिया। अब ये कंटिन्यूस कैसे है कि हम तब तक नीचे जाते रहेंगे स्टेयर्स से, मतलब हम स्टेयर्स तब तक यूज़ करते रहेंगे जब तक कि 2 महीने में एलिवेटर कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता। टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस, दैट टू बी इन फ्यूचर, बट वो अब कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को ऑनगोइंग रखा हुआ है। तो होप आपको ये ढंग से समझ में आया होगा। हम इसको और अच्छे से समझेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, लेट अस स्विच टू नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, सिंपल जब भी होता है कोई भी टेंस, चाहे फ्यूचर, चाहे पास्ट, चाहे प्रेजेंट, जब उसमें स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड होता है। ओके, लेट अस सी हाउ। देखो सिंपल लिखा है यहाँ पर। अब जो ये है हमारा बीच का वो है प्रेजेंट टेंस, जो पहले का है वो है पास्ट टेंस, और जो आगे का है वो है फ्यूचर टेंस। ओके, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम पे है। ये आपकी अगर टाइमलाइन है तो ये अगर आपका प्रेजेंट है तो उसके पीछे हुआ तो ये पास्ट हो गया, और उसके आगे हुआ तो फ्यूचर हो गया। ये तो आपको समझ आ गया। लेट अस सी अगेन। अब हमने एक ही सेंटेंस लिया, उसको हमने डिफरेंट टाइप से समझेंगे कि कैसे। शी वर्क्स वेरी एवरी डे, ठीक है, वो हर रोज काम करती है। इसी का सिंपल पास्ट टेंस होगा तो क्या बनेगा, शी वर्कड येस्टरडे, क्योंकि आपको टाइम मैंने कहा था ना चेंज होता है। जो भी आपका टाइम होता है, टाइम क्लॉज होता है, वो चेंज होता है। तो शी वर्कड येस्टरडे हो गया। अब इसी को हम फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, सिंपल फ्यूचर में, तो ये बनेगा शी विल वर्क अगेन टुमारो। नेक्स्ट डे में करेगी ना, तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, एंड दिस इज योर पास्ट टेंस। ओके, लेट अस सी, जब सिंपल यानी परफेक्ट
या प्रेजेंट जो है आपका प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर आपका प्रोग्रेसिव हो, जब आपका पास्ट प्रोग्रेसिव हो, ओनली प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यू कर रहा है। कंटिन्यू कर रहा है मतलब अभी जो आपने स्टार्ट किया वो आगे कंटिन्यू कर रहा है, और इसमें फ्यूचर में जो आपने फ्यूचर प्रेजेंट से स्टार्ट किया वो फ्यूचर तक जाएगा, आगे तक जाएगा, और इसमें जो पास्ट से है वो पास्ट से प्रेजेंट तक आएगा। आपको ये समझ में आ गया? नाउ लेट अस सी द sentences and then we will understand it better. She is working, जो अब हम सिंपल प्रोग्रेसिव यानी सिंपल कंटिन्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर रहे हैं, उसमें आ जाएगा शी इज़ वर्किंग। लेकिन जब हम पास्ट कंटिन्यूस करेंगे तो ये आएगा शी वॉज वर्किंग एट 9 AM दिस मॉर्निंग। ठीक है, अगर ये राइट नाउ है टाइम क्लॉज तो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम देते हैं हम। मैंने कहा ना हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे तो सिंपल फॉर्म ऑफ टेंसेज आएगा एंड कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेज आएगा या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ टेंसेज आएगा। लेकिन जब अनस्पेसिफाइड होगा टाइम तो वो परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेज हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंसेज हो जाएगा। आपको ये क्लियर हो गया? अब ये है प्रोग्रेसिव में हमें फ्यूचर में बनाना है तो ये हो जाएगा शी विल बी वर्किंग एट 6 PM टुनाइट। ओके, नाउ लेट अस सी दिस एग्जांपल इन द अनस्पेसिफाइड टाइम और कैसे वो परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनता है। तो लेट अस सी ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट और ये हो गया फ्यूचर। ओके, अब हमें पता है कि दो एक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात कर परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस की बात करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, जब पास्ट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सो फार शी हैज़ वर्कड ऑल हर लाइफ, ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट में तो ये हो जाएगा व्हेन शी रिटायर शी हैड वर्कड ऑल हर लाइफ। और जब हम उसे फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं व्हेन शी रिटायर शी विल हैव वर्कड ऑल हर लाइफ। ठीक है, देखो ऑल हर लाइफ सेम है। ठीक है, अब इसमें देखो शी हैज़ वर्कड लिखा है, हैज़ लिखा है तो इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट टेंस है। हैड लिखा है तो हमें इससे पता चला कि ये पास्ट टेंस है, और विल हैव लिखा है तो हमें इससे पता चला कि ये फ्यूचर टेंस है। अब ये परफेक्ट है क्योंकि दो काम इकट्ठे हो रहे हैं, रिटायरमेंट का और उसका काम करने का पूरी लाइफ में। इसी तरीके से पूरी लाइफ काम करने का उसका, और सो फार अभी तक कर रहा है उसने, और रिटायर होने का और वर्क करने का। तो आप समझ गए दो कौन से एक्शन साथ हो रहे हैं। दो एक्शन साथ होते हैं तो परफेक्ट टेंस बनता है, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट टेंस की फॉर्म हो। ओके, अब नाउ लेट अस कम टू दी अनस्पेसिफाइड फॉर्म, जो कि हमारे परफेक्ट प्रोग्रेसिव की है। कोई भी टेंस हो तो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। ओके, लेट अस सी। अब देखो, जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है तो ये है शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 40 years। और अगर हमारा ये पास्ट टेंस बनेगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव बनेगा तो ये हो जाएगा व्हेन शी रिटायर्ड शी हैड बीन वर्किंग फॉर 40 years। हैड बीन लग गया ना और वर्किंग लग गया, इंग लग गया तो ये कंटिन्यूस हो गया, और हैड बीन लग गया तो ये पास्ट हो गया। ओके, इसी तरीके से बच्चों हम फ्यूचर टेंस को देखते हैं। व्हेन शी रिटायर्स शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 40 years। ओके, सो ये था आपका कि कैसे आपका सिंपल टेंस और सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस बनता है या कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ टेंस बनता है, जो कि दोनों स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जबकि परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो होता है वो अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए होता है, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूइंग ना, दो एक्शंस हमेशा साथ साथ हो रहे हैं तो ये होता है। अब ये कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। Let us see further with examples.
बेटा ये अब सिंपल आपको मैंने टेंसेस के रूल्स का फॉर्मेट दे दिया है। जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, जब भी कोई भी सब्जेक्ट होगा प्लस क्या आएगा प्रेजेंट टेंस में उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस एस या ई एस लग जाता है उसके साथ, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। फिर उसके बाद अगर वही प्रेजेंट की प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी या कंटिन्यूस फॉर्म होगी तो उसमें एम सब्जेक्ट के साथ एम, इज या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगता है, और फर्स्ट फॉर्म लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के इंग लग जाता है। ओके, फिर अगर हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उस फॉर्म में क्या होगा, टेंस की सब्जेक्ट लगेगा, उसके साथ हैव या हैज लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नाउ व्हाट अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव? देखो प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस एक ही होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, उसके साथ हैव या हैज बीन लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा और इंग लग जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जब आता है तो सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाता है और ऑब्जेक्ट लिखता है। ये सिंपल फॉर्म ऑफ हमारा पास्ट टेंस हो गया, यानी सिंपल पास्ट हो गया। जब हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस होता है तब क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस हमारे साथ इंग लग जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में इंग ज़रूर लगेगा, आपको ये समझ आ ही गया होगा। परफेक्ट फॉर्म है यानी पास्ट परफेक्ट है हमारा, तब क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ आपकी वर्ब लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सब्जेक्ट के साथ आपका हैड बीन लगेगा, प्लस उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्लस आपके साथ इंग लगेगा। ओके, हमेशा जो कंटिन्यूस होता है उसके साथ क्या लगता है बच्चों, इंग। ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा, अब आप फ्यूचर टेंस को देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस होगा तो विल या शैल का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वी है तो क्या बच्चों आएगा, वी के साथ शैल आएगा। ठीक है, और विल कब आएगा, जब यू लिखेंगे, शी या ही लिखेंगे। ओके, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब है फ्यूचर प्रोग्रेसिव यानी फ्यूचर कंटिन्यूस, तब हम सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और इंग लगाएंगे। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट फॉर्म जो है हमारी कैसे आएगी, टेंस कैसे आएगा, सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, नाउ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लगाएंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और इंग लगा देंगे, तो हमारे साथ बन जाएगा ये फ्यूचर टेंस। तो ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, आपको इसे बिल्कुल क्लियरली याद करना होगा। यू हैव टू लर्न इट एंड मेमोराइज इट। ओके, नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट्स, अब हमें ये देखना है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारा ये चीज़ें चेंज होती है जब हमारे सेंटेंसेस चेंज होते हैं। सेंटेंसेस मतलब जहाँ जहाँ पर आप ये पॉजिटिव देख रहे हो यानी कि ये पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, जहाँ आप नेगेटिव देख रहे हो यानी इसका नेगेटिव सेंटेंसेस है, और जहाँ क्वेश्चन मार्क देख रहे हो आप ये समझ जाओ ये जो सेंटेंसेस हैं ये क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। लेट अस सी क्या ट्रीटमेंट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस। ओके, हम सेंटेंसेस और टेंसेस को इकट्ठे देख रहे हैं, तो हमने एग्जाम्पल लिया है और व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस सी इट इन द टैबुलर फॉर्म ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए बच्चों। सबसे पहले देखो, जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं ऐसे में अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि ही ड्राइव्स कार। लेकिन जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, डज आता है, डज या डू आएगा,
प्लस नॉट आता है, बिकॉज नॉट नेगेटिव तो तभी बनेगा जब नॉट आएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो यानी ही डज नॉट ड्राइव कार। ओके, अगर इसी को हमने इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला बनाना है तो कैसे बनेगा, डज ही ड्राइव अ कार, तो हमारा क्या आएगा, डज ES है बेटा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, डज ही ड्राइव द कार, डज या डू आएगा अकॉर्डिंगली, और उसके साथ है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, वी हैव कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ लेट अस कम टू द सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है, यानी ही ड्रोव कार। अब उसके बाद क्या है, जब नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है हमने इसी सेंटेंस को, तो ये आ जाएगा पास्ट नेगेटिव सेंटेंस जो है, सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट ड्राइव अ कार। जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे डिड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एंड ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगर हमें इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो ये बनेगा डिड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है एंड ऑब्जेक्ट लगाना है। दिस इज जो है हमारा सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन पूछने के लिए या तो हमें डज लगाना पड़ता है या डिड लगाना पड़ता है। डज हम कब लगाते हैं, प्रेजेंट टेंस में, या डू लगाते हैं उसके अंदर, और पास्ट टेंस में हम डिड लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या करते हैं, हम या विल या शैल का प्रयोग करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, उसके बाद हम विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि ही विल ड्राइव कार। ओके, उसके बाद क्या होगा, अगर हमने इसी को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम इसके अंदर नॉट लगा देते हैं, तो हमारा सब कुछ सेम रहता है, बस नॉट आ जाता है उसमें, जैसे ही विल नॉट ड्राइव अ कार। ठीक है, तो यानी सब्जेक्ट लगेगा, विल लगेगा, प्लस नॉट लगेगा और प्लस वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगेगा। ओके, नाउ लेट अस कन्वर्ट इट इनटू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हो जाएगा, विल सबसे पहले आएगा बिकॉज वी हैव टू मेक इट इंटेरोगेटिव, मतलब हमें क्वेश्चन बनाना होता है, और क्वेश्चन जब बनाना होता है तो हम सबसे पहले जो वर्ब की फॉर्म है उसको पहले ले आते हैं, और सॉरी जो हमारी विल की फॉर्म है उसको पहले ले आते हैं, विल या शैल हम पहले ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, नाउ अगर हम प्रोग्रेसिव पे आए तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस होता है तो आपको पता है क्या होता है, जब हम कंटिन्यूअस करते हैं तो इंग ज़रूर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इंग लगेगी, ये तो हमें पता ही है। लेकिन उसके अलावा हम क्या करेंगे, हमें करना है ये सब्जेक्ट के साथ इज़ या एम लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या आर लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के, इंग लगा के ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये हो जाएगा ही इज़ ड्राइविंग कार। ओके, और इसी का नेगेटिव अगर हमने बनाना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो हमें लिखना होगा ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। यहाँ पे नॉट लगा देंगे बेटा, ऊपर नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट में हो जाएगा इज़ एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस नॉट, तो ये आएगा ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ही वॉज ड्राइविंग अ कार, जैसे पास्ट टेंस था, सॉरी मैं पहले ही कर लूँ कंप्लीट। इसी को हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है। व्हाट विल वी डू, इज़ ही ड्राइविंग द कार, हम सबसे पहले इज़ एम आर ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ले आएंगे, इंग लगा देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, क्लियर। लेट अस कम टू द पास्ट नाउ। अब क्या होगा, अगर हमें प्रोग्रेसिव बनाना है, मतलब कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू करने के लिए इंक तो लगाना ही है, हमें पता ही है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे वॉज और वर लगा के। देखो ये इसने क्या किया, ही वॉज ड्राइविंग कार, सब्जेक्ट लगाया, वॉज वर लगाया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, इंग लगाया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ही वॉज
नॉट ड्राइविंग अ कार, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, इसमें मिस कर दिया नॉट, ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हमें इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा वॉज ही ड्राइविंग अ कार। ठीक है, हम वॉज या वर्ब लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के इंग लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ओके, लेट अस सी द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, हमारे जो फर्स्ट हमारी प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म है जो कि हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज हो रही है। उसमें सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इंग और ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही विल बी ड्राइविंग कार। ठीक है, और अगर हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा ही विल नॉट बी, यहाँ पे नॉट आ जाएगा बेटा, नॉट लिख लो, नॉट ड्राइविंग अ कार या कार, सब्जेक्ट के साथ विल बी आ गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, नॉट आया और इंग आ गया। ठीक है, व्हाट अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस? नाउ विल सबसे पहले आएगा, ही विल बी ड्राइविंग कार, विल आ गया, सब्जेक्ट आया, बी आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया, इंग आया और ऑब्जेक्ट आ गया। लेट अस कम टू दी परफेक्ट पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, देखो जब हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा ही हैज़ ड्रिवन कार। ठीक है, और इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे, ही हैज़ नॉट ड्रिवन कार, क्योंकि नॉट लग जाएगा उसमें, बाकी तो सब सेम रहेगा। फिर उसके बाद है जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें पता है जो भी हम हैज़ या हैव लगा रहे होते हैं उसको हम सामने ले आएंगे, मतलब फर्स्ट ले आएंगे, फर्स्ट जगह पे ले आएंगे, सब्जेक्ट जहाँ लगा रहे थे वहाँ पे लगाएंगे और सब्जेक्ट हमारा उसके बाद आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, हैज़ ही ड्रिवन कार और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, हमारे पास आया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हमारे पास हैड लग जाएगा, हैड लग जाएगा और उसके साथ फिर हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो ही हैड ड्रिवन कार हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप क्लियर कर लो इसको, ही हैड आएगा यहाँ पे, ही हैड के साथ नॉट, ये इन्होंने गलती से रिपीट कर दिया, यहाँ नॉट नहीं आएगा क्योंकि नॉट तभी लगेगा जब हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे, बट यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम इसे नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, नॉट लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ये बन जाएगा ही हैड नॉट ड्रिवन कार। ठीक है, फिर है इसी लाइन को हमने अगर इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाला बनाना है सेंटेंस तो क्या होगा, हम हैड को पहले ले आते हैं, तो हैड ही ड्रिवन कार, तो ये हो जाएगा हैड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर में देखो तो इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, ही के साथ जो सब्जेक्ट है हमारा उसके साथ विल लगेगा, फिर हैव लगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी और हमारा ऑब्जेक्ट लगा, तो यानी हो जाएगा ही विल हैव ड्रिवन कार। तो यहाँ पे आएगा, इसमें कुछ गड़बड़ है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपके साथ विल हैव आएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, विल हैव आएगा, नॉट उस वाले में ऊपर वाले में नहीं आएगा, नेगेटिव लगा रहे हैं तो इसलिए नॉट लगा रहे हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। और इसी तरीके से जब हमें इसे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के साथ विल प्लस हैव लगा के प्लस नॉट लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट दे देंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस जो कि होएगा ही विल नॉट हैव ड्रिवन कार। ठीक है, अब इसी को इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, विल को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, जो बन जाएगा विल हैव, ही हैव ड्रिवन कार। ओके, नाउ लेट अस कम टू दी
प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होगा आपका, ही हैज़ ड्रिवन द कार, इसमें क्या है आपके पास सब्जेक्ट के साथ हैव हैज़ या के साथ बीन लग जाता है, क्योंकि आपको पता है जो प्रोग्रेसिव है उसके साथ बीन लगता है, ठीक है ना। यानी जो कंटिन्यूस है उसके साथ बीन लग जाता है जब वो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो, ओके। तो क्या होगा इसके साथ हैज़ या हैव के साथ बीन लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और इंग लग के ऑब्जेक्ट लग जाएगा। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें नॉट ऐड हो जाएगा। तो यानी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा ही हैड बीन ड्राइविंग कार और नेगेटिव सेंटेंस होगा ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार। अब इसी को हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो है हैव या हैज़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आके इंग लग के फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हैज़ ही बीन ड्राइविंग द कार, ठीक है, ड्राइविंग कार, ओके। नाउ लेट अस कम टू द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होगा बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैड लग जाता है, फिर बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इंग लग जाता है। इंग तो लगना ही है क्योंकि कंटिन्यूस है और परफेक्ट है, तो इसीलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसके लिए बीन भी लग रहा है। ही, तो ये हो जाएगा ही हैड बीन ड्राइविंग कार। अगर इसे नेगेटिव करना है तो नॉट जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ हैड और नॉट जुड़ के बीन लग जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ इंग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ही हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार। अब इसी को इंटेरोगेटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा हैड ही बीन ड्राइविंग द कार। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैड को हम फर्स्ट फॉरमोस्ट ले आए, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, फिर इंग लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिया, ओके। नाउ कम टू दी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, इसमें सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन ये लग जाएगा, विल हैव बीन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग के इंग लग के ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये हो गया ही विल हैव बीन ड्राइविंग कार। और अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है तो हम कुछ नहीं करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे विल के बाद, तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग कार। और इसी को हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो ये हो जाएगा हैव ही विल बीन ड्राइविंग कार। मतलब हैव के साथ हमने सब्जेक्ट लगाया प्लस विल लगाया प्लस बीन लगाया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के इंग लगा के ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो बच्चों ये था आपका डिफरेंट जितने भी आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैं, इसको और क्लैरिटी से हम नेक्स्ट स्लाइड में भी समझ सकते हैं। मैं आपको एक जस्ट प्रीव्यू दूंगी उसका। अब बच्चों देखो, आपको मैंने ये ऑलरेडी समझा दिया है और इसमें आपको बताया है कि डू और डोंट कैसे यूज़ करते हैं। इसमें टाइम क्लॉज आपको जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझाया था वो ही यहाँ पे टाइम क्लॉज फ्रेज दे रखा है, आपको टाइम क्लॉज को समझाया हुआ है, उसका यूज़ भी बताया हुआ है कि कब कब यूज़ होता है, कि जनरल ट्रूथ में यूज़ होता है, रिपीटिव एक्शंस या कस्टमरी एक्शंस में यूज़ होता है, प्लान फ्यूचर में यूज़ होता है, और ये डू और डज हम कब लगाते हैं। आप इसको अच्छे से देख कर समझ कर लिख सकते हो। इसको मैंने आगे एक फर्दर पार्ट सेकंड में भी बताया है, लेकिन आप इसको भी कंसिडर करना और इसको भी लिख लेना। और क्या कहते हैं, इसमें जनरली आपको जो मैंने अभी समझाया है ये आपकी एक प्रैक्टिस वर्क है। आपको अगर इसमें कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि आपको क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैं आपको बता दूंगी, ओके। नेक्स्ट देखो, इसमें फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है जिसमें हमें पता है कि जो टाइम फ्रेज है उसमें ऑलवेज, एवरी, डे और मंथ लिखना होता है, सेल्डम, समटाइम्स, ये सारे चीज़ें यूज़ करते हैं हम। क्योंकि इसमें हमने जनरल ट्रूथ बतानी है, रिपीटिव कस्टमरी एक्शंस बनाने हैं और प्लान फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा टाइम क्लॉज या टाइम फ्रेज है वो कौन सा हो जाता है, येस्टरडे, मिनट्स अगो,
एगो आ जाता है उसमें, ठीक है ना। और लास्ट, जैसे लास्ट वीक, लास्ट वो, अदर डे, ठीक है। अब हम इसमें जब बात करते हैं तो हम पास्ट एक्शंस जो परफॉर्म किए हैं जो फिनिश हो गए टाइम के अंदर, ठीक है। और कुछ स्टोरीज हैं जैसे कि सक्सेशन ऑफ द पास्ट स्टोरीज जो कि आगे कंटिन्यू हो रही हैं। टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट टेक प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन, कोई चीज़ जो किसी और एक्शन के बीच में चल रही है। आप इसको एक बारी गो थ्रू हो जाना तो आपको पता चलेगा। हमेशा जो इसमें रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसके साथ ईडी लग जाता है, और जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उनके साथ सेकंड कॉलम लग जाता है। जैसे वेंट है, एट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है ना, वो लग जाती है। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें क्या करते हैं, कौन से क्लॉजेज आते हैं, जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, सून, इन नियर फ्यूचर, ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, कौन कौन से यूज़ होते हैं, कब कब यूज़ होता है। जैसे फ्यूचर एक्शंस की बात हो रही हो, हम उनके बारे में बात कर रहे हो, तब यूज़ होता है। या हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर को, प्रोबेबली, या फिर हम ये कहते हैं कि वंडर्ड आए, परहैप्स होना है, तब हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, आपको ये पता है, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। शेल और शेल नॉट का यूज़ होएगा, विल और शेल अकॉर्डिंगली लगेगा। फिर ये है, इसके साथ है टू एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द डिसीजन। जब जिस समय, जिस मोमेंट में डिसीजन लिया जा रहा है उसके अंदर अपनी इंटेंट बताई जाती है। जैसे डू यू लाइक दीज शूज़, आपसे उसी वक्त क्वेश्चन किया जा रहा है और उसी वक्त आपको आंसर येस आई विल बाय देम, ठीक है। फिर दूसरा है टाइप कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप ऑफ, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनिंग सेंटेंसेस पढ़े हैं ना, कंडीशनल सेंटेंसेस। उसमें से जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ना, इफ के करके जो लिखते हैं, उसके अंदर भी हमारा फ्यूचर टेंस लगता है और वो भी यूज होता है। जैसे शेल इज यूज मोस्टली इन द क्वेश्चंस, एंड इन स्पोकन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज आई विल एंड वी विल, वी शेल, ठीक है। आई शेल और वी शेल यूज़ करते हैं ना, क्योंकि आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है। तो ये थी आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ टेंसेस। नेक्स्ट टेंसेस में आपको मैं सिर्फ टेंसेस के यूजेस के ऊपर इलेबोरेट करूँगी, जो इसके यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ग्लिम्स दी थी। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।